everything. So today's video is going to be on a very important topic, that is English speaking, and I'm making this part again because like मेरे previous part पे like you guys showed so much love on that video and I got so many DMs कि मुझे एक और part बनाना चाहिए उस video पे इसी topic पे. So yeah, here I'm making the second part and thank you so much for such an amazing response. I'm so glad that you guys loved my video, that you guys found it helpful. Thank you so much. Okay, so yes, and also before starting the video, one very important thing is उसके बारे में मुझे बात करनी है. That is this one Instagram page called Danishki Memes. Okay, and that person is literally making a very ridiculous post on Sushant Singh Rajput. Now I know that not everyone loves him. I know that there are many people who would be literally hating him. लेकिन एक बहुत ही thin line होती है between like disrespecting someone and being funny. So this person is making ridiculous posts on Sushant, and I know there are different people in this world, and there are each one of us are having different opinions, and I respect everybody. I respect their opinions, but this is something literally ridiculous. And if you will visit his channel, you will yourself see that how disgusting his thoughts are and what his parents has taught him. He is showing over there, throwing the shit all over on Instagram. So please go and visit that page and report it. And once you will visit that page, I'll be mentioning in my description. Once you will visit that page, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा that what's so much disgusting about that, and आप खुद ही report कर दोगे. So according to psychology, after our 20s, our language learning skills decrease. But yes, there's no need to feel bad or there's no need to feel low about it, because there are so many secrets behind English learning, and I'm going to reveal all the secrets to you guys धीरे-धीरे videos में. And for that, please subscribe to my channel. मुझे बहुत अच्छा लगेगा if you will subscribe. And yes, you will also get notified about my upcoming videos, and आप कोई भी video miss नहीं करोगे. So please subscribe. Okay. So let's start the video. And the very first tip is find an English speaking partner. This is very important to find a person with whom you can talk in English. वो कोई भी हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो इंसान मतलब you should be trusting that person कि वो आपको बता सके कि आप कहाँ सही बोल रहे हो, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, सब कुछ वो आपको ऑनेस्टली बताए. क्योंकि जब तक that person is not going to tell you about your mistakes, आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे. You always learn from your mistakes. तो आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना है कोई ऐसा इंसान ढूंढना है जो आपकी हेल्प कर सके, जो आपसे इंग्लिश में बात कर सके. नाउ दैट पर्सन मस्ट नो इंग्लिश प्रॉपरली. उसको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसी को इंग्लिश नहीं आएगी, आपको तो आ ही नहीं रही है, तो फिर तो लोचा हो जाएगा. तो फिर फाइंड अ पर्सन हु नोज इंग्लिश प्रॉपरली. एंड इससे दूसरा बेनिफिट ये होगा, एक तो आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा ये भी होगा दैट यू आर गोइंग टू लर्न न्यू वर्ड्स. अब ये आप बोल सकते हो कि नहीं, न्यू वर्ड्स तो हम मेमोराइज कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं, लेकिन आपने भी खुद नोटिस किया होगा कि जो चीज़ें आप याद करते हो, जो चीज़ें आप रट्टा लगाते हो ना, वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती हैं, है ना. पर जहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं एंड फिर हम उनको याद करते हैं, लाइक समझते हैं, तो हमें वो चीज़ें याद रहती हैं हमेशा. सो व्हेन यू विल बी टॉकिंग विद दैट पर्सन इन इंग्लिश, यू आर गोइंग टू लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे. एंड जब आप सीखोगे तो आप पूछोगे कि हाँ, इसका मतलब क्या है या इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी. एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी वोकैबुलरी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी. और ये सारी जितने भी टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मतलब दे हैव वर्कड फॉर मी. मतलब मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ उनमें वही टिप्स शेयर करती हूँ जो सच में जिन्होंने मेरी हेल्प की होती है. ओके, सो येस, फाइंड एन इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर. एंड सेकेंड वन इज रीड शॉर्ट स्टोरीज. ओके, जैसे ही हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो तुरंत ही हमें पता होता है कि हाँ, हमें ना बुक्स पढ़नी है, हमें नॉवेल्स पढ़नी है. हम ये मोटी मोटी नॉवेल्स, ये मोटी मोटी बुक्स उठा के ले आते हैं और उसके बाद में हम कभी उनको ओपन ही नहीं करते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ कि इंग्लिश मतलब लाइक हमारे माइंड में ये होता है कि हाँ, हमें इंग्लिश अभी प्रॉपरली आती नहीं है.
राइट। तो जब आप इतनी मोटी मोटी बुक्स लेके आ जाते हो तो आपके माइंड में वो एक ना बहुत ही डिफिकल्ट सा टास्क बन जाता है दैट आपको इंग्लिश सीखनी है। आप अपने माइंड में आपके ये रहता है हाँ मुझे इंग्लिश सीखने के लिए ये बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो वो बहुत एक टफ सा बहुत हैवी सा टास्क हो जाता है ऑन योर ब्रेन एंड योर ब्रेन स्टार्ट्स प्रोक्रास्टिनेटिंग इट, ओके। एंड व्हेन इट स्टार्ट्स प्रोक्रास्टिनेटिंग यानी कि वो टालना शुरू करता है उसको, और फिर वो चीज़ें कभी हो ही नहीं पाती हैं। एंड आपने देखा होगा वो अलमीरा में ऐसी पड़ी रहती है वो बुक्स। तो वो नहीं करना है। यू हैव टू रीड शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियों वाली बुक्स पढ़नी स्टार्ट करनी है। पहला तो मैंने बता दिया कि आपका ब्रेन जो है वो मतलब उसको एकदम टास्क के रूप में नहीं लेगा, उसको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं फील होगा। और दूसरा ये होता है कि जब हम ना नॉवेल्स या ऐसे कोई बुक्स उठा के लेके आते हैं तो क्या होता है कई बार उनमें ना बहुत टफ इंग्लिश होती है, ठीक है। एंड जब हम स्टार्टिंग में ही बहुत मतलब आपने बस अभी आपने एक डिसीजन लिया कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी है, एंड उसके बाद में जैसे ही आप एक बहुत टफ इंग्लिश आप देखते हो अपने सामने, तो यू नो आपका मोटिवेशन अपने आप ही बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। एंड इट्स वेरी नेचुरल ऑब्वियसली, क्योंकि पहला इंप्रेशन जो आपके ऊपर आएगा वो तो ये आएगा कि ओह शिट इट इज़ सो हार्ड टू लर्न इंग्लिश। वो नहीं करना है हमें। भले ही आप अपने आप को कितना भी मोटिवेटेड रखने की कोशिश करो कि नहीं चलो मैं नेक्स्ट पेज पे पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, फिर थर्ड पेज, फिर फोर्थ पेज, फिर वो नहीं हो पाता है। एंड उससे ये होता है कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई भी नहीं करते हो कोई और बुक पढ़ने की भी। तो हमें वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियों की बुक्स आती है ना, उनसे शुरुआत करना। एंड फॉर श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, ट्रस्ट मी, मेरी हेल्प हुई है। थर्ड पॉइंट इज डू नॉट लर्न ग्रामर रूल्स, ठीक है। अभी जैसे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि चलो अब हमें इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, चलो वी हैव टू इंक्रीज आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, वी हैव टू एनहेंस आवर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। तो पहला जो हमारा ध्यान जाता है वो जाता है ग्रामर पे, ठीक है। एंड ग्रामर पे ध्यान जाता है तो हमें याद आते हैं उसके रूल्स, और उसी वक्त खल्लास। बहुत ही गलत चीज़ है। ग्रामर में जो रूल्स है वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन दैट, वी डू नॉट हैव टू मेमोराइज इट। जब आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना स्टार्ट करोगे रोज़ 30 मिनट्स अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, और अगर आप यू नो इफ़ यू आर टॉकिंग एवरी डे इन इंग्लिश विद दैट पर्सन, आपको लाइक ट्रस्ट मी, आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइज कि ना आपको खुद ब खुद अंदर से समझ में आने लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये ग्रामर सही रहेगा या यहाँ पे ये ग्रामर प्रॉपर रहेगा। बट स्टिल इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन मतलब लाइक यू नो बेसिक टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, तो मैं उन पर बता सकती हूँ एंड आई कैन टीच ऑन यूट्यूब। तो या टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट मी टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। बट येस, अभी फिलहाल जो मेरी टिप है वो यही है कि ग्रामर के रूल्स पे ध्यान नहीं देना है, वो आपको अपने आप खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। अगर आप अभी से ग्रामर पे ध्यान दोगे ना तो यू आर गोइंग टू मिस द वेरी यू नो एसेंस, लाइक मतलब जो मेन चीज़ है ना, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इन इंग्लिश, ठीक है। और कोई भी चीज़ हम जब नई शुरुआत करते हैं, कोई भी नई चीज़ सीखने की शुरुआत करते हैं, तो उस वक्त हम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसे हम अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो प्लीज़ अभी ग्रामर के रूल्स की तरफ नहीं भागना है एंड नीड नॉट टू फील डीमोटिवेटेड, सब हो जाएगा एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस, ओके। सो येस, 3 tips that I shared are, the very first one is find an English speaking partner, कोई ऐसा इंसान जिसको खुद को इंग्लिश आती हो एंड आपको वो बता सके कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आप सही जा रहे हो, ताकि आप न्यू वर्ड्स भी सीख सको। सेकेंड टिप इज रीड शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी बुक्स ऐसे स्टार्ट करनी है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन रीड माय ब्लॉग ऑल्सो, मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ, मैं नीचे लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ विजिट माय ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। एंड ऑल्सो रीड शॉर्ट स्टोरीज। एंड थर्ड वन इज़ डू नॉट लर्न ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स की तरफ हमें अभी बिल्कुल भी नहीं भागना है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना डीएम में या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर श्योर, ओके। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड tell me in the comment section कैसा लगा, okay, and subscribe to my channel so that you get notified about my upcoming videos. Thank you so much for watching. Bye.